Very good morning, dear students. Today we learn the second part of Standard 7 Social Science Chapter 1 The Two Big Cities, and today we will learn about Vatapi. In first part we will learn about King Harshvardhan, and in this part we will learn about Pulkeshi too. Okay, when King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi II was ruling in South India. He had earlier defeated Harsh. जब पुलकेशी नॉर्थ इंडिया में राज कर रहा था, तब किंग पुलकेशी II वो साउथ इंडिया में राज कर रहा था और वो हर्ष को पहले हरा चुका था. रूट टू द थ्रोन, किंग ऑफ चालुक्य Solanki dynasty established a vast empire in South India, which they ruled from their capital at Vatapi, right now Badami, Karnataka. Pulkeshi I, a great king of the Chalukya dynasty, performed the Ashwamedha Yagna. His flag had symbol of Varahavatar. His son Kirtivarma ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Mangalesh, who built the grand Vishnu temple at Vatapi. After him, the righteous Pulkeshi II became king and ruled over the empire for about 30 years. जब भी चालुक्य के किंग, सोलंकी डेंसिटी के किंग, उन्होंने अपना एम्पायर, उन्होंने अपना राज्य साउथ इंडिया में बहुत दूर दूर तक बसाया था. उन्होंने उस टाइम का वतापी, अभी का कर्नाटका जो बदामी है, वहाँ तक पुलकेशी II ने अपना राज्य फैलाया था. वो चालुक्य डेंसिटी के बहुत ही अच्छे किंग थे. उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया था और उनका जो फ्लैग है उस टाइम का वो वराहवतार तरीके से पहचाना जाता था. उनके पुत्र कीर्तिवर्मा, उन्होंने पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने ताज पहना और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह काम किया. और उनके भाई जो मंगलेश हैं, उनके थ्रू उन्होंने उनकी हेल्प से विष्णु टेम्पल बनवाया वतापी में. पुलकेशी I के बाद पुलकेशी II, उनके ब्रदर, उनके हाथ में हक आया और उन्होंने वतापी में पूरे एम्पायर पे 30 सालों तक राज किया. लेट्स सी नेक्स्ट पुलकेशी II from 610 to 640 century. Pulkeshi was a valiant king who won many battles. His first victory was over Lat, South Gujarat, followed by his win over Gujarat, North Gujarat. He gained control over the Vangi region that lay between the rivers Krishna and Godavari and also acquired Andhra Pradesh. He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. अभी पुलकेशी II जिन्होंने 30 साल तक राज्य किया, उनका राज्यकाल का साल है 610 से 642 सेंचुरी. पुलकेशी बहुत ही अच्छा किंग था, जिन्होंने बहुत ही युद्ध जीते थे. उनकी पहला युद्ध था जो साउथ गुजरात में लाट में उन्होंने विजय पाया और उसके बाद गुर्जर में मीन्स नॉर्थ गुजरात में भी उन्होंने विजय पाया. उन्होंने अपना कंट्रोल वैंगी रीजन तक ले गए थे और कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी अपने अंदर कर लिया था. और वहाँ पे उन्होंने अपना कैपिटल जो वतापी है वो बहुत ही अच्छी सिटी तरीके से उन्होंने बनवाया था. हियर यू कैन सी इन पिक्चर Ajanta caves. The armies of Harshvardhan and Pulkeshi II fought a great battle near river Narmada, which the former was defeated. This halted Harsh's expansion towards South India and so the empire of Kanauj could not extend beyond Narmada. हर्षवर्धन और पुलकेशी II के आर्मी ने नर्मदा रिवर के आगे बहुत ही अच्छी तरीके से युद्ध किया, पर उसमें हर्ष की हार हुई और वो कनौज के एम्पायर को बचा नहीं पाया. Pulkeshi II was not only a great warrior but also a lover of arts.
The cave of Vatapi and Dharapuri were built during his reign. The famous cave murals of Ajanta were also painted at that time. In his travels, Yuan visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of its grandeur. The king of the Chalukya dynasty were followers of Hinduism. During this time, Buddhism went into decline while the Digambar Jain sect gained popularity. पुलकेशी टू बहुत अच्छा वॉरियर था और आर्ट का लवर भी था। वतापी के गुफाएं और धारापुरी की गुफाएं उनके समय में बनी थी। फेमस अजंता की गुफाएं भी उनके समय में पेंट की गई थी। उनके ट्रैवल हिस्ट्री में जो हुएन संग था उन पुलकेशी टू के दरबार में आया और उन्होंने बहुत सारे टाइप के अकाउंट को ग्रांडेचर किया। किंग ऑफ चालुक्य डेंसिटी वो हिंदुइज़्म के फॉलोअर थे और उनके टाइम में बुद्धिज़्म थोड़ा सा कम हो गया और दिगंबर जैन वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। Harshvardhan and Pulkeshi too were contemporary rulers. However, Harsh fought fewer battles as compared to Pulkeshi, who continued waging wars. He finally met his end in 642 century in a conflict with the Pallav king of Kanchipuram. King Harshvardhana died 5 years after him. हर्षवर्धन और पुलकेशी टू दोनों ही बहुत ही कंटेम्पररी रूलर्स थे और हर्ष ने पुलकेशी टू से कम बैटल जीते और पुलकेशी टू जो था वो कंटिन्यूअर वैगिंग वॉर्स था, हमेशा जीतता रहता था, बट उनका डेथ हो गई 642 सेंचुरी में पल्लव किंग के द्वारा कांचीपुरम में, और किंग हर्षवर्धन उनके 5 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। Now let's see the question answers. Answer the following questions in brief. Study the maps of states of Harsh and Pulkeshi II and note down the major cities in reverse. Under the rule of Harshvardhan and Pulkeshi II, chiefly Kanauj, Patliputra, Valbhi, Chalukya, Kalinga, Pallav, Chola, Yera, Pandyas and many other towns were there. There were Karna, Suvarna, Ganga, Jamuna, Shan, Maha, Godavari, Narmada, Krishna and many other rivers. उनके समय में हर्षवर्धन और पुलकेशी टू में मेनली जो सिटीज़ थे वो कनौज, पाटलिपुत्र, वल्लभी, चालुक्य, कलिंगा, पल्लव, छोला, येरा, पंड्यास एंड मैनी अदर टाउन्स थे और उनके अंडर में ये सारी नदियाँ आती थी, रिवर्स आती थी, कर्ण, सुवर्ण, गंगा, जमुना, शॉन, महा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कई सारी। Question number 2 is, what was the difference between Pulkeshi II and Harsh personalities? किंग हर्षवर्धन और पुलकेशी टू की पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस था? हर्षवर्धन was contented. He stopped fighting battles after winning a few, while Pulkeshi II was ambitious. He continued waging wars. This was the difference between personalities of Pulkeshi II and Harshvardhan. हर्षवर्धन बहुत ही कंटेंटेड था, वो 1-2 फाइट जीतने के बाद, 1-2 युद्ध दौरान जीत जाने के बाद वो बैटल करना छोड़ देता था, जबकि पुलकेशी टू था वो बहुत ही एम्बिशियस था, उन्होंने एक के बाद एक वो सभी राज्यों को अपने अंडर करना चाहा, इसलिए उन्होंने युद्ध करना चालू रखा था। ये बहुत ही वास्ट डिफरेंस है दोनों पर्सनालिटीज़ के। Question number 3 is, why did Huanshan carry books, relics and statues back with him to China? हुएनसांग ने अपने संग चाइना बुक्स, रेलिक्स और स्टैचूज क्यों ले गए? Then the answer is, Huansang wanted to study Buddhism deeply. Therefore, when he returned to China, he carried with him some books, relics and statue of Lord Buddha along with him from India. हुएनसांग बुद्धिज़्म के बारे में बहुत ही अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहते थे। जब वो चाइना रिटर्न गए, इसलिए उन्होंने अपने साथ थोड़ी सी बुक्स और रेलिक्स और स्टेच्यू अपने साथ ले गए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, whom did Harsh think of freeing after ascending the throne?
As soon as Harsh came to the throne, he thought of freeing his sister Rajyasree, who had been imprisoned by Devgupta, the king of Malwa. जैसे ही हर्ष ने ताज पहना अपने माथे पे किंग का, तो उन्होंने क्या फ्री करने के लिए सोचा। तो जब भी जैसे ही हर्ष ने अपने माथे पे किंग का ताज पहना, उन्होंने अपनी बंदी बनी हुई बहन राजश्री को देवगुप्त से, किंग ऑफ मालवा से छुड़ाने का प्रण लिया। Next question is, name the plays written by Emperor Harshvardhan. Emperor Harshvardhan wrote 3 plays, Nagananda, Ratnavali and Priyadarshika. ये तीनों हर्षवर्धन के हाथों लिखे गए प्लेस थे। नंबर 6, विच केव्स आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग पुलकेशी II रीजन। पुलकेशी II के दौरान, उनके राज्य के दौरान उन्होंने कौन कौन से कंस्ट्रक्शन बनाए। During the period of Pulkeshi II region, the caves of Vatapi and Dharapuri were constructed. Some worldwide famous painting of Ajanta caves were prepared during the period of Pulkeshi II region. Okay? जब उनके पुलकेशी II के शासन के दौरान वतापी और धारापुरा के केव्स बनाए गए, गुफाएं, और अजंता केव की कई पेंटिंग्स जो थी वो पुलकेशी II के राज्य के दौरान बनाई गई थी। Now next question is to discuss, why was Harsh not able to defeat Pulkeshi II? Pulkeshi II was a powerful king. He was a very brave warrior. He had won many battles, so Harsh was not able to defeat Pulkeshi II. हर्ष पुलकेशी II को हराने में कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि पुलकेशी II बहुत ही पावरफुल किंग थे, उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे, इसलिए हर्ष उनको हराने में कामयाब नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज अ बेटर किंग, हर्ष और पुलकेशी II? गिव रीजन्स। एम्पीरियर हर्षवर्धन वॉज अ बेटर किंग देन पुलकेशी II बिकॉज ही वॉज वैलियंट, religion loving, knowledge loving and a devotee of literature. He was a great donor and well cultured. He had a number of construction made for people's welfare in his state. People were happy and prosperous in his time. He had a deep understanding and sense of administration. He had appointed different ministers, secretaries to run the administration of his state. हर्षवर्धन था वो पुलकेशी II से अच्छा किंग था, क्योंकि बहुत ही वैलियंट था, रिलीजन लविंग था, और उसको उनके टाइम पे लिटरेचर लविंग था। उन्होंने बहुत सारी मठास और कंस्ट्रक्शन बनवाए थे उनके टाइम में, और वो खुद अपने राज्य के लोगों को जाके देखते थे, इतना वेलफेयर करते थे, इतना दान पुण्य करते थे, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके शासन में इतने सारे उन्होंने मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज रखे थे कि प्रॉपरली वो काम पूरा कर सके अपने राज्य का। On the other hand, Pulkeshi II had won many battles and had been a famous valiant king, but he had not carried out any works of state administration or public welfare as Harsh did. पुलकेशी II ने हमेशा युद्ध करने और अपना राज्य बढ़ाने के लिए सोचा, बट उन्होंने अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया जैसे कि हर्ष ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, why was there war between Harsh and Pulkeshi II? Why did they not wage war again? Harsh and Pulkeshi II were abundantly valiant, yet they fought because Harsh wanted to extend the boundary of his empire from North India up to South India. On the other hand, Pulkeshi II was wanted to extend the boundary of his empire to North India. Thus, both of them were ambitious to extend their empires. The armies of both of them clashed at the Narmada. There was a great battle between the two, in which Pulkeshi II defeated Harsh. The empire of Harsh thus could not extend beyond the Narmada. Then he put down his thought of fighting again against Pulkeshi II. Therefore, no battle was fought between the two again. हर्ष और पुलकेशी II दोनों ही अच्छे वॉरियर थे। उन्होंने दोनों चाहते थे, हर्ष चाहते थे कि उनका राज्य नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक हो, और पुलकेशी II भी ऐसा चाहते थे कि उनका राज्य साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक का हो जाए।
तो दोनों ही में से बहुत एम्बिशियस थे, इसलिए नर्मदा के किनारे दोनों की आर्मी ने फाइट की। बट उन पुलकेशी टू की आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी, तो हर्ष हार गए और इसलिए वो अपना राज्य नहीं बढ़ा सके और उन्होंने दूसरी बार पुलकेशी टू हर्ष ने दूसरी बार पुलकेशी टू के साथ कभी युद्ध नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रेजेंट डे यूनिवर्सिटीज एंड नालंदा यूनिवर्सिटी? अभी की यूनिवर्सिटी में और नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंसेस थे? तो देखते हैं कि अभी की यूनिवर्सिटी में नो एंट्रेंस टेस्ट इज मैंडेटरी इन द प्रेजेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देन other than in Nalanda University there was a compulsory entrance test for entrance aspirants in the university. अभी की यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस टेस्ट कॉमन नहीं है, बट नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी था। नंबर 2, लॉजिंग एंड डाइनिंग चार्जेबल इन द हॉस्टल्स ऑफ प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम। लॉजिंग एंड डाइनिंग वॉज फ्री ऑफ चार्ज फॉर स्टूडेंट इन दिस यूनिवर्सिटी। लॉजिंग और डाइनिंग, खाना और रहना अभी की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में होता है तो उसमें चार्जेस लगते हैं, बट नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय में स्टूडेंट को ये सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज मिलता था। नंबर 3, फीस आर चार्ज टू स्टडी इन प्रेजेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अदर दैन नो फीस वर्स चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट स्टडीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी। अभी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फ़ीस ली जाती है, बट उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में कोई फ़ीस नहीं लिया करते थे। नंबर 4, मास एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन द प्रेजेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो टीचर्स कैन नॉट पे इनफ अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली। On the second hand, teachers paid personal attention to students in this university. अभी के एजुकेशन सिस्टम में एक पूरा मास होता है जिनको टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है, तो टीचर्स पर्टिकुलर पर्सन पे, पर्टिकुलर स्टूडेंट पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दे सकते हैं इंडिविजुअली। पर उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचर्स पर्सनल अटेंशन रखते थे स्टूडेंट पे। So this is the textbook exercise of this chapter. Watch this video carefully. Thank you very much. Have a nice day.